تو آپ نقصان برداشت کر سکتے ہیں تو آپ اس ہابی میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نقصان برداشت نہیں کر سکتے یا اتنا حوصلہ جگرا نہیں رکھتے تو پھر آپ اس ہابی میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس بھی اکثر ایشو آتا ہے، دن میں کافی برڈ ایکسپائر ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ سستا برڈ مل جاتا ہے، اچھا پروفٹ آ جاتا ہے، تو یہ ایک گیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ٹائم ٹو ٹائم ہی اچھی لگتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ برداشت نہیں کریں گے نا برڈ کا مرنا، تو دیکھیں یہ سانس والی چیز ہے، اس نے تو ایکسپائر ہونا ہی ہونا ہے۔ تو آپ نے بڑا حوصلہ رکھ کر اس ہابی میں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ آ کر آپ کھل کے شوق کریں۔ اگر ایک پرندہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کے بدلے میں آپ کو اچھا پرندہ عطا کریں گے۔ سر دیکھیں پروپر جو ہے نا، فی الحال تو ابھی میں بھی نہیں چلا سک رہا، تو میں کس طرح یہاں پہ جھوٹ بول دوں جی میں لاکھوں روپیہ کما رہا ہوں اور میں جی بہت زیادہ کر رہا ہوں۔ میں بھی جاب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ جاب کریں، ایک اچھے بریڈر بنے، برڈس کو کوانٹٹی میں لائیں، ایک سرکل اپنی لائف میں بنائیں۔ جب آپ اپنی لائف میں سرکل بنا لیں گے نا، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال یا کوئی ٹائم لگے گا، آپ اس مقام پر ہوں گے کہ آپ کا گھر بھی اچھا چل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو اپنے سینئرز کی عزت کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو برڈ کی کیئر کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ایک ٹائم پیریڈ بنانا پڑے گا جس میں دانا پانی برڈز کا چینج کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ان ساری چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے، پابند ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا آپ کا گھر بھی اس سے بہت اچھا چلے گا، اور بہت سارے لوگوں کا چل بھی رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں کوئی اس طرح کا جھوٹا خواب کسی کو نہیں دکھا سکتا کہ آپ جی پرندے رکھ لیں اور آپ گھر بیٹھ جائیں بس کہ میرا جی سارا سرکل اس پہ ہاں جی، تو یہ نہیں ہوگا۔ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کام کوئی بھی آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کام کوئی بھی ہوتا ہے اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، پھر آپ ایک ٹائم آتا ہے ایک مقام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شارٹ بزنس آئیڈیا۔ تو دوستوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور بیل کے نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو دوستوں آج ہم آئے ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے دوست حسن بھائی، جو کہ ماشاءاللہ سے تقریباً 8-10 سال سے جو ہے نا برڈ کو بریڈ کروا رہے ہیں اور ایک سکسیسفل بریڈر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں ان کی جرنی کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، ویلکم۔ حسن بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ سر دعائیں آپ کی۔ حسن بھائی سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو اپنا مختصر تعارف کروائیے گا۔ جی میرا نام حسن ہے، ٹھیک ہے۔ بارٹن کینٹ میری لوکیشن ہے، اور میں تقریباً 8 سے 10 سال سے میں نے برڈز رکھے ہوئے ہیں، اور میں ٹوٹل فنچز پہ ہی کام کرتا ہوں۔ فنچز کا ہی مجھے شوق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وقت کی ضرورت ہے، جو برڈ اب آسٹریلین پیرٹس وغیرہ مختلف جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہوگو وغیرہ، وہ بھی اب میں کوشش کرتا ہوں اچھے سے اچھا برڈ دے سکوں، ٹھیک ہے۔ جس طرح مخصوص آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، آپ دکھائیں گے انشاءاللہ بعد میں کہ جی جو ہے میں نے ٹوٹل برڈ رکھے ہوئے ہیں، لیکن جو میرا بیسک جو شوق ہے، جو جنون ہے، وہ فنچ ہے۔ صحیح ہے۔ تو اچھا حسن بھائی، یہ اس کی پیئرنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور پیئرنگ کے علاوہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اپنا باکس مانگ رہی ہے؟ کیا ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آئیں تو ہم باکس لگائیں؟ سر جی برڈ کی ایج پوری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میل فیمیل میں جو زیبرا فنچ ہے، مختلف فنچز میں الگ طریقے سے پتہ لگتا ہے کہ میل کون سا ہے، فیمیل کون سا ہے۔ جیسے سب سے پہلے موٹیشن زیبرا ہے میرے پاس۔ زیبرا میں جو میل ہوتا ہے اس کی چیسٹ پہ نشان ہوتا ہے، فیمیل سمپل ہوتی ہے، یہ پیئر کی نشانی ہے۔ جب میل فیمیل دونوں وسلنگ کرنے لگ جائیں، بولنے لگ جائیں، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کا پیر ایک بریڈ کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو باکس دیں، دین وہ آپ کو انشاءاللہ بریڈ دے گا، ٹھیک ہے۔ اور گولڈین فنچ میں بھی چیسٹ سے پتہ لگتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے، مارکنگ کوئی نہیں ہوتی، کلر سے پتہ لگتا ہے۔ جو چیسٹ پہ کلر لائٹ ہوتا ہے تو وہ فیمیل ہوتی ہے، ڈارک ہوتا ہے تو وہ میل ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ڈی این اے وغیرہ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت نہیں ہے، ان کا اسی طرح پتہ لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو حسن بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا برڈ ہے، یہ ہیچنگ پیریڈ اس کا کتنے دیز کا ہوتا ہے؟ سر زیبرا فنچ کا جو ہے تقریباً 13 دن میں یہ انڈے سے بچہ ہیچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے ہی 12-13 دن میں یہ بچہ سیل بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اوپر ہمیں 10 دن دینے چاہیے، جو ان سا بچہ جو اچھے طریقے سے ماں باپ کو دیکھ لے، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل اس کا 28 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہے فنچ کا، جس میں یہ پروپر اپنے بچے 4-5-6 جتنے بھی بچے ہیں
ये सेल्फ करके आपको दे देती है। अच्छा हसन भाई, एक इशू लोगों को बहुत ज्यादा आता है कि जब इसके चिक्स वगैरह सेल्फ हो जाते हैं तो सेल्फ होने के बाद जब वो लोग वालिदैन से इनको अलहदा करते हैं ना, तो इनमें मोर्टेलिटी रेशो आ जाती है। तो मोर्टेलिटी आने की क्या वजह होती है? क्या ये प्रॉपर सेल्फ नहीं हुए होते या हम इनको जल्दी पेरेंट्स से अलहदा कर देते हैं, ये वजह होती है? सर इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। सही हो गया। ठीक है, तो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हम उसका टाइम पीरियड से पहले ही उसको लग कर देते हैं। जब हम उसको लग करते हैं तो बच्चे को ना बाहर रहना नहीं आ रहा होता, बच्चे को नहीं पता होता किस बर्तन में खाना है, क्या करना है। बच्चा जब नीचे आता है वो अपनी बिट्स भी मुंह में डालता है, ठीक है ना, वो फिर उल्टी सीधी हरकतें करता है, दाना नहीं टाइम पे खाता। तो जब उसके पेरेंट्स के साथ उसे रहने देंगे ना, तकरीबन आप 1 मंथ 10 डेज तक देखें, 5-7 दिन ऊपर जाने दें बच्चे को, बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, बच्चा सीख भी जाएगा। ठीक है ना, माँ बाप से देखें, इसको हमने तो सिखाना नहीं है, इसने तो अपने पेरेंट्स को देखना है वो क्या कर रहे हैं, उसी तरह उसने भी बाहर आगे करना है। तो लोग क्या करते हैं, अभी बच्चे बॉक्स के अंदर होते हैं, वो देखते हैं जी हेल्दी एक्टिव है, ठीक है, वो उठाते हैं जी अलग केज में फेंक देते हैं, 2-3 दिन फ्लाई करवाते हैं, देन सेल कर देते हैं। तो वो मोर्टेलिटी की वजह ही ये है, एक तो एज कम, दूसरा बच्चों को केज में सरवाइव खुद नहीं करना आता। सही है। तो सेलिंग का आप कह रहे हो, तो सेल हमें बर्ड उस वक्त करना चाहिए जब ये पट्ठा बन जाता है, सेल्फ हो जाता है प्रॉपर, या उस वक्त करें कि जब ये ब्रीडर पेयर बन जाए? सर देखें, अगर तो आप पट्ठा सेल करते हैं उसकी कीमत और होती है, अगर आप ब्रीडर सेल करते हैं उसकी कीमत और होती है, अगर आप रेडी टू फर्स्ट ब्रीड सेल करते हैं उसकी कीमत और होती है। अगर तो आप उसको बड़ा करके सेल करेंगे, जाहिर बात है आपको पैसे भी थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर आप बच्चा सेल करेंगे, पट्ठा सेल करेंगे, तो जाहिर बात है उसे पट्ठे वाली कीमत मिलेगी आपको। तो होना तो यही चाहिए हमें कि बच्चे कम से कम 3 माह की एज में हम सेल करें, ताकि अगले न्यू फेंसर के पास जाके भी सरवाइव करे। सही है, ठीक है ना। अब लोग मोस्टली यहाँ पर हो रहे हैं फोन जावा या कोई भी गोल्डियन के चीक्स हैं, अच्छी म्यूटेशन के चीक हैं, वो 2.25 माह में अलग कर रहे हैं, 2.5 माह में अलग कर रहे हैं। और जिसको पूछते हैं वो कहते हैं कि 2.5 माह इसकी एज है, उसकी एज 2.5 माह नहीं होती, इन्होंने 2 माह में लग कर दी होती हैं, 10 दिन फ्लाई देते हैं, 2 माह 10 दिन का बच्चा होता है, ये कहते हैं कि 2.5 माह है। तो आप मुझे बताएं वो बच्चा किस तरह सर्वाइव करेगा, वो तो फिर मरेगा ही ना। सही बात है, ठीक है। तो कम से कम जो ब्रीडर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है, कम से कम 2.5 माह प्लस बच्चे को लग करें, ताकि वो न्यू फेंसर के बाद जाके एक्सपायर ना हो, ठीक है, और एक उसका शौक, न्यू फेंसर का शौक भी बढ़े। सही है। तो अच्छा हसन भाई, बाज़ का जो ब्रीडर है ना, वो इसमें उनको ये इशू आ रहा होता है कि जो इनफर्टाइलिटी बहुत आ रही होती है उनको, तो इनफर्टाइलिटी की क्या वजह है और इनफर्टाइलिटी से कैसे बचें हम? सर इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, ठीक है, हवा क्रॉसिंग नहीं, अक्सर मोस्टली अब लोग है ना, सर्दी आती है तो डर जाते हैं, फटाफट अपने शेड क्लोज कर देते हैं। तो आपके शेड में ना कम से कम हवा क्रॉस होनी चाहिए, जो ताज़ा हवा है ना, कम से कम अगर आप हवा क्रॉसिंग नहीं रखना चाहते ना, तो कम से कम दिन के टाइम जब बाहर धूप हो ना अच्छी खासी, तो आप जो है अपने शेड्स की जो तरपाल हैं वो उठा दें, ताकि आपके बर्ड को ताज़ा हवा भी हो, आपके बर्ड को रोशनी भी नजर आए, खाली आपका बर्ड बल्ब की रोशनी में ना रहे, आपके बर्ड को पता हो कि यार बाहर दिन है और अब रात होनी है। सही है। तो जब ये चीजें हो जाती हैं ना, तो फिर अनफर्टिलिटी नहीं आती। सही है, ठीक है। और एक सबसे ज्यादा इशू इसलिए भी आ रहा है कि लोग अपने शेड्स की लाइट नहीं बंद करते। सही है। मोस्टली रात को लाइट्स अब कुछ टाइम के लिए बंद कर देनी चाहिए, ताकि आपका बर्ड आराम कर सके। आपका बर्ड जो है ना, जब आराम करेगा फिर इजी फील करेगा, फिर आपके बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छी फीड भी करवाएगा। ठीक है, फिर आपका जो उनका खर्चा है वो भी बचेगा दाने का। सही है, ठीक है ना। जब लाइट 24 घंटे चलती रहेगी तो बर्ड खाता रहेगा, वो दाना वेस्ट करता रहेगा आपका। ठीक है, तो इन्हें कम से कम सोने के लिए टाइम देना चाहिए। सही है। तो अच्छा हसन भाई, ज्यादातर जो लोग हैं ना, उनके जो शेड हैं वो इंडोर हैं, तो सनलाइट जो है ना वो प्रॉपर नहीं आती। क्या सनलाइट इनके लिए जरूरी है या इसके बगैर भी सर्वाइव कर जाते हैं? सर जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी। देखें, लाइट जो है बर्ड को कम से कम पता तो होना कि दिन है बाहर, ये रात है, बर्ड को सब कुछ पता होता है। ठीक है, ये हमारी सोच है, ये तो एक परिंदा, इसको क्या पता है? परिंदे को खाने पीने का पता है, परिंदे को दिन रात का भी पता है। ठीक है ना। परिंदे को ये भी पता है कि आज नया बंदा हमारे जगह पर आया है, ठीक है ना, ये मेरा मालिक आज मुझे दाना पानी नहीं डाल रहा, तो ये चीज है। ठीक है ना। अब ये मेरे परिंदे हैं ना, ये आप देख रहे हैं ओपन भी फेर रहे हैं, हम बैठे हैं बिल्कुल रिलैक्स
रिलैक्स हैं, इनको पता है कि जी हम बैठे हुए हैं, इजी हैं, ठीक है ना। अब कोई नया बंदा आएगा ना, ये फड़फड़ाएंगे अंदर, तो उससे अंदाजा होता है कि बर्ड एक समझ रखता है। सही है। तो हसन भाई आप ये भी बताइएगा कि जो न्यू फैंसियर हैं वो जो इस फील्ड में आना चाहता है वो क्या बात ज़हन में रख के आए कि उसके माइंड में वो बात हो, यार मैं अगर ये काम कर लूँ तो मैं इसमें सक्सेस हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो जब इसमें आते हैं तो वो सक्सेस नहीं हो पाते। सर इसमें सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर आपने 5,000 रुपया लगाया है ना, तो आप ये समझें कि आपका 4,000 रुपये का नुकसान होना है। ठीक है, अगर तो आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप इस हॉबी में सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते या इतना हौसला जिगरा नहीं रखते तो फिर आप इस हॉबी में सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे पास भी अक्सर इशू आता है, दिन में काफी बर्ड एक्सपायर होते हैं। बार दफा इस तरह होता है कि सस्ता बर्ड मिल जाता है, अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। तो ये एक गेम है, ठीक है ना। तो ये टाइम टू टाइम ही अच्छी लगती है। देखें अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे ना बर्ड का मरना, तो देखें ये सांस वाली चीज है, इसमें तो एक्सपायर होना ही होना है। तो आपने बड़ा हौसला रखकर इस हॉबी में आना है। ठीक है, आकर आप खुल के शौक करें। अगर एक परिंदा एक्सपायर हो गया है तो अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसके बदले में आपको अच्छा परिंदा अता करेंगे। अच्छा हसन भाई ये भी बताइएगा कि ये जो हमारे बर्ड हैं, अगर बात का होता है कि यार वो बर्ड अच्छा परचेज नहीं कर पाता, बर्ड परचेजिंग के वक्त वो किन बातों का ख्याल रखे कि कौन सा बर्ड उसे लेना है, कैसे लेना है, परचेजिंग का बताएं थोड़ा सा, क्योंकि परचेजिंग के हवाले से लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता। सर देखें जिस चीज़ की मार्केट चल रही होती है ना वो चीज़ आपको मोस्टली महंगी मिलती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उस चीज़ को सस्ता परचेज करने का तरीका क्या है? अब देखें जिस तरह मैं हॉबी में पुराना हूँ, मैंने जिन जिन कस्टमर्स को सेल किए हुए हैं उनके पास ब्रीड आई है, तो डेफिनेटली वो सबसे पहले मेरे साथ लिंक में है तो मुझे ही पूछेंगे। सही है, ठीक है ना। अगर एक चीज की कीमत 6,500 है तो उसकी कोशिश होगी मुझे 6,500 ही मिले। ठीक है ना, हर इंसान चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। तो आप उसके साथ बार्गेनिंग करें, उसके साथ डील करें, उसके साथ अपने डील बनाएं। ठीक है ना, जहां आपने 2 परिंदे लेने हैं आप उसके सारे ले लें, ताकि वो भी हर बंदे को घर ना बुलाए, परेशान ना हो, राब्ता ना करे। तो जब आप उससे कट्ठे खरीदेंगे तो डेफिनेटली वो 500,000 आपको कम करेगा। सही है, तो वही बेनिफिट मैं आगे अपने कस्टमर्स को दे देता हूँ। सही है। तो हसन भाई आप ये भी बताइएगा कि क्या बर्ड फार्मिंग करके हम प्रॉपर अपना घर का सर्कल चला सकते हैं या बस आप इसको साइड बिजनेस ही रख सकते हैं? सर देखें प्रॉपर जो है ना, फिलहाल तो अभी मैं भी नहीं चला सक रहा, तो मैं किस तरह यहाँ पे झूठ बोल दूँ जी मैं लाखों रुपया कमा रहा हूँ और मैं जी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं भी जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, आप जॉब करें, एक अच्छे ब्रीडर बने, बर्ड्स को क्वांटिटी में लाएं, एक सर्कल अपनी लाइफ में बनाएं। जब आप अपनी लाइफ में सर्कल बना लेंगे ना, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल या कोई टाइम लगेगा, आप उस मुकाम पर होंगे कि आपका घर भी अच्छा चल जाएगा। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपने सीनियर्स की इज्जत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको बर्ड की केयर करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम एक टाइम पीरियड बनाना पड़ेगा जिसमें दाना पानी बर्ड्स का चेंज करना होगा। ठीक है ना। तो जब इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, पाबंद हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा आपका घर भी इससे बहुत अच्छा चलेगा और बहुत सारे लोगों का चल भी रहा है। ठीक है ना। तो मैं कोई इस तरह का झूठा ख्वाब किसी को नहीं दिखा सकता कि आप जी परिंदे रख लें और आप घर बैठ जाएं बस कि मैं मेरा जी सारा सर्कल इस पे हाँ जी, तो ये नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, काम कोई भी आसान नहीं होता। ठीक है, काम कोई भी होता है उसको टाइम देना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है, फिर आप एक टाइम आता है एक मुकाम पर पहुंचते हैं। सही है। ये देखें व्यूअर्स, अगर आप ये बर्ड्स का काम करते हैं तो आप इसको एज अ साइड बिजनेस ही लेके चलें, क्योंकि एज अ साइड बिजनेस लेके चलेंगे तो फिर तो आप इसमें खुशहाल भी रहेंगे, टेंशन भी नहीं होगी। अगर साथ आप कोई आपका प्राइमरी को बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस करें, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब को कंटिन्यू रखें और साथ साथ ये काम करते रहें। ये माशाल्लाह आपको इसमें भी अर्निंग आएगी, काम अच्छा है। और बाकी आपको जो हसन भाई ने सारी बातें जो है ना वो अपनी अच्छी अपने दिल से ही सारी बताई है, उसमें कोई 2 नंबरी वाला तो उन्होंने काम किया ही नहीं है। हालांकि वो जो है ना इसके अपना एक तो माशाल्लाह से अच्छे ब्रीडर भी हैं, ब्रीडर के अलावा वो जो है ना अपना जो बर्ड का जो है ना लेन देन भी करते हैं, बर्ड परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं। एक प्रॉपर जो है ना वो बिजनेस इसका कर रहे हैं। अगर आपने बर्ड आपका सेल नहीं हो रहा तो आप इनको बर्ड
सेल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह यानी कि कीमत भी आपको अच्छी देंगे। ये नहीं कि आपका बर्ड वो चोरों वाला रेट लगाएंगे, वो सिस्टम नहीं होता। अगर आपका बर्ड अच्छा है तो आपको अच्छी कीमत मिलेगी, अगर आपका बर्ड जो है वो अच्छा नहीं है तो वो उस हिसाब से ही वो कीमत लगाएंगे। तो माशाल्लाह से वो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और एक अच्छा इसमें जो है ना वो उनका नाम है और अच्छा ही काम है, दोनों चीज़ें अच्छी जा रही हैं माशाल्लाह। तो अगर आप कोई भी इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपके साथ 2 नंबरी हो जाएगी। बाहर से बात का तो होता है कि लोग बर्ड बाहर से सेल करते हैं तो उनको बर्ड अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते, अच्छे बर्ड भी नहीं मिलते। तो अगर आप इनसे रब्ता करेंगे तो जो बर्ड है वो दिखाएंगे आपको, वही बर्ड इन्होंने सेंड करना है। ये नहीं होना कि आपको बर्ड दिखाया और है और आपको भेज और कोई दें। तो अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं तो इनसे कर सकते हैं, और सेलिंग अगर करना चाहते हैं तो सेल भी कर सकते हैं इनको। तो अच्छा हसन भाई, और हमारे व्यूअर्स को आप कोई इसमें कोई अच्छी को टिप्स देना चाहें, कोई आपके पास है तो वो भी हमारे काइंडली हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें। देखिए, मैं अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं ना न्यू फैंसर को रिलीफ दूँ, जी ऐसे ही सस्ता परिंदा दूँ। हाँ जी, तो यार जब ये सब मुझे सस्ता परिंदा देंगे तो मैं दे सकूंगा दे ना। सकूंगा जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो तो ऑलरेडी मैं दे ही रहा हूँ, जी जी ठीक है ना। तो जो मैंने परचेज करना है, अगर आप मुझे मार्केट से कम प्राइस में देंगे तो देन मैं भी आगे कम प्राइस में दे सकूंगा, ऐसे ही है। ठीक है। मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना बर्ड से मखसूस सा मार्जिन रखूं और मैं परिंदा आगे दे दूं, ठीक है। तो किसी ने सेल भी करना हो तो रब्ता कर सकता है। जी जी, कोशिश करूंगा अच्छा रेट दूं। अगर कम रेट दूंगा तो उसकी रीजन सिर्फ यही होती है कि अगर मुझे सस्ता मिलेगा तो मैं आगे भी सस्ता दूंगा, सही है, ऐसे ही ठीक है ना।